Okay, good morning everyone. So we have completed the topic linkage and we have done Morgan's experiment in the last lecture. So just to recap that, what were the crosses that T.H. Morgan he has done and what was the result of all two crosses. So first, when he intercrossed Drosophila melanogaster, वो क्या होता है ड्रैगन, and in F1 generation he found that genes they are not segregating independently, just as Mendel was saying that genes they segregate independently, because of which he has given the law of independent assortment. But in this case, two genes they are not segregating independently in F2 generation, so here the ratio is deviating from 9:3:3:1. इसीलिए I have already told you that linkage was the concept that Mendel he has not come across, due to which he was able to give independent assortment principle. अगर linkage उस टाइम उसके सामने आई होती तो शायद ये independent assortment principle वो नहीं बना पाता. Second finding from Morgan experiment was that these genes that we were talking about, that was Y, W and M, all of them they are present on X chromosomes. Next, two genes they are situated on the same chromosome. So when two genes are present on same chromosome, then the percentage of parental gene combination formation in the next generation is much higher as compared to the non-parental type. इसका मतलब recombination combinations जो F2 जनरेशन में बनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है as compared to the parental combination. So this whole is due to the concept of linkage. So you may get one mark question by using these statements. And last was genes for white and yellow body color, white eye color and yellow body color, they were tightly linked and they were showing only 1.3% of recombination, whereas gene for white eye color and miniature wings, that was showing 37.2 recombination. So that means they are loosely linked. So from here we can make out that tightly linked genes they show low recombination, means more linkage, and loosely linked genes show high recombination and less linkage. Okay, so after this there is the contribution of Alfred Stewart. Alfred was student of T.H. Morgan, and when T.H. Morgan he has given the concept of linkage, then Alfred further used that concept by using the recombination frequency between the gene pairs as the measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome. इसका क्या मतलब, देखो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बोल दो या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोल दो, दैट मीन्स द सेम. ठीक है, अब एल्फ्रेड स्टूवर्ट ने क्या किया कि उस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके दो और नई चीज़ें पता लगाई कि दैट इफ़ वी नो द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स, then we can easily measure the distance between the genes as well as we can find out the position of the genes on the chromosome. Mapping का मतलब होता है to find out the position. ठीक है, जैसे मैप में हम लोकेट करते हैं चीज़ों को, किसी पर्टिकुलर रिवर या किसी पर्टिकुलर स्टेट को, तो यहाँ मैपिंग ऑफ जीन्स का मतलब क्या होता है, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन क्रोमोसोम. सो दिस वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्फ्रेड स्टूवर्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको लर्न कर लेना दैट व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी टू find out the distance between the genes as well as the position of the genes on chromosome.
And in today science, these findings, or when we find the location of genes on the chromosome, particular chromosome, we call them genetic maps. मैपिंग बोलते हैं उसको. So these genetic maps, they were used as a starting point in sequencing the genome as Human Genome Project. So this was the future use of findings of Alford. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम आगे पढ़ेंगे. इसका मतलब होता है ह्यूमंस में जितने भी जीन्स हैं उन सब जीन्स की लोकेशन फाइंड आउट करना और उनके फंक्शंस फाइंड करना. तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अब तो कंप्लीट हो गया. उस प्रोजेक्ट में इन जेनेटिक मैप्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसी की वजह से वी वर एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन्स. ठीक है. सो यूजिंग दिस concept, that how we can find out the distance or the location of the genes on a particular chromosome. So next topic is how linkage is helping to find the distance between the genes as well as the arrangement of genes on chromosome. Okay. ओके. इस चीज़ में यू हैव टू नोट वन थिंग, दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज़ मेजर्ड इन सर्टन यूनिट्स एंड वी कॉल दोज यूनिट्स एज CM. C छोटा, M कैपिटल. इट स्टैंड्स फॉर सेंटीमॉर्गन. तो TH मॉर्गन के नाम के ऊपर इसको दिया गया यूनिट को नाम, सो इट इज़ सेंटीमॉर्गन. इसको आप MU भी बोल सकते हैं, दोनों छोटे. M stands for map and U for unit. ठीक है. So the unit in which we can find or which we can denote the distance between the genes is centimorgan या फिर map unit. ठीक है. अब ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी, so better write it down in your notebooks. Now how we will find out? This is the relation. ये हो गया यूनिट जिसमें हम मेजर करेंगे, and this one is the relation. 1% chance of crossing over means 1% recombination frequency, which is equal to 1 centimorgan or 1 map unit distance. Okay. So 1% crossing over means 1% recombination frequency, and it is denoted as 1 centimorgan या 1 map unit. ठीक है. बस ये दो चीज़ें याद रखनी है कि आप किस यूनिट में उसको डिनोट करोगे और कितने % क्रॉसिंग ओवर का मतलब कितने % यूनिट्स है, तो वो डायरेक्टली यू विल कन्वर्ट. अगर 20% क्रॉसिंग ओवर दिया है तो डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमॉर्गन या 20 मैप यूनिट. ठीक है. 35% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो दैट मीन्स 35% इज़ द सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस. ठीक है. डायरेक्ट है वो. Now in one question, how to calculate the distance and arrangement of genes on a chromosome. For example, question ऐसे दिया है that crossing over frequency between gene A and gene B is 25%. Suppose एक random question लिया मैंने. Then crossing over frequency between gene A and C is 10%. तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं हमें. Now calculate the distance between B and C as well as the arrangement of the genes. ठीक है. अब हमें 3 जीन्स दिए हैं A, B and C. A और B का डिस्टेंस दिया हुआ है, B और A और C का डिस्टेंस दिया है, बट वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C एंड इट्स अरेंजमेंट. तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं क्रॉसिंग परसेंटेज को इनटू सेंटीमॉर्गन. As the percentage of crossing over is exactly equal to centimorgan or map units, so here it means the distance between gene A and B is 25 centimorgan, yeah, 25 map unit, and distance between gene A and C is 10 map unit. ठीक है. डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया. अब जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, whenever you are getting some question,
आप सबसे पहले उन दो जीन्स के डिस्टेंस को ड्रॉ करोगे। ये न्यूमेरिकल इधर ड्रॉ करना है आपको, जिसका डिस्टेंस सबसे लंबा है। सो यू हैव टू ड्रॉ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फर्स्ट। अब इन दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 10 या 25? सो इट इज़ 25. सो हाउ यू विल ड्रॉ इट, दैट सपोज दिस इज़ जीन ए एंड दिस इज़ जीन बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 25 मैप यूनिट्स। उसके बाद और लॉन्गेस्ट को ड्रॉ करने के बाद जो फारदेस्ट हैं दो जीन्स, उनको ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आप बीच में ऐड करते जाओ। अब ए और सी में उन्होंने बोला है इट इज़ 10 सेंटीमॉर्गन। ऑब्वियसली अगर ए इधर है तो सी कहीं आसपास होगा। 25 अगर टोटल है तो इसका हाफ हो जाएगा अबाउट 12.5। सो 10 उसके, अब ये नहीं कि इसको आप स्केल से नाप के बनाओगे, नो, ठीक है, ये आप रफ बनाओगे, बट इट शुड बी नियर टू द ओरिजिनल, कि अगर ये हाफ है उसका तो 10 थोड़ा पीछे चला जाएगा। सो दिस इज़ 10 मैप यूनिट्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी विल बी, टोटल में से आप 10 माइनस कर दो, इट इज़ 15 सेंटीमॉर्गन। तो अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि कैलकुलेट द क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी, ऐसे डिस्टेंस नाम पूछा होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? इफ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज़ 15 सेंटीमॉर्गन, देन क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी विल बी 15%, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ जीन? अरेंजमेंट आपको हमेशा लेफ़्ट टू राइट पढ़ना होता है। इट इज़ ए सी टू बी। तो ये नहीं सोचना कि ए बी सी होती है नॉर्मली, ए बी सी डी ऐसे चलना है, तो आपको और तरीके से भी अरेंजमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ये आपको नीट में भी आता है, अपने वाला जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट पूछा जाता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, so there is no scope for losing marks for such a simple question. So there is one more example and I want कि आप खुद करो उसको। Like crossing over frequency between different gene is given. Crossing over between gene P and Q is 48%. Q and R is 10%, Q and S is 15%, R and S is 5%. Suppose ये मैं सॉल्व कर दिया वैसे मैंने इसको, and I'll give you some another questions, वैसे ही आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। Now you have to calculate the distance between P and S and P and R, और दूसरा वही to calculate the arrangement of genes, ठीक है। Now how we will do this particular question, वही वाला रखना है लॉ, that first of all we will select the farthest combination। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 48% का मतलब क्या है, 48 सेंटीमॉर्गन, इसका मतलब है 10 सेंटीमॉर्गन, इसका मतलब है 15 सेंटीमॉर्गन, एंड दिस इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, P एंड Q, सो हेयर विल बी P एंड हेयर इज़ Q, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग दैट Q एंड R इज़ 10 whereas Q and S इज़ 15, R एंड S इज़ 5, ठीक है। अब Q और R के बीच में है टोटल 10, तो अगर यहाँ Q है, सपोज़ ये 48 है तो ये 24 के अराउंड कुछ होगा, तो दिस विल बी अराउंड 12, और चलो सपोज़ यहाँ Q और R के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 48, ये डिस्टेंस हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ आ गया R, देन Q एंड S इज़ 15, R एंड S इज़ 5, ठीक। अब मैं R और S यहाँ भी लिख सकती हूँ कि ये R है, अगर ये 10 है तो इसको हाफ़ कर दो तो वो 5 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया S।
लेकिन इस रिलेशन को अगर आप यहाँ लिखते हो, ठीक है, ये चीज़ें ऐसे भी आएंगी। इफ़ आई राइट एस हेयर सपोज, तो क्या आप इस क्यू एस को जस्टिफाई करते हो दैट क्यू और एस के बीच का डिस्टेंस 15 है? सो नो। तो अगर ये क्यू है, ये आर है, तो एस हैज़ टू बी समवेयर हेयर, so that if this is 5, so q and s will become 15। आपको इस तरीके से अरेंजमेंट बनाना है कि जितने भी आपको रिलेशंस या डिस्टेंसेस गिवन हैं वो सारे उस पर फिट बैठे। अगर s को आप इधर लिख देते हो तो क्यू एस जो गिवन है 15 वो नहीं बनेगा, दैट मीन्स वो अरेंजमेंट रॉन्ग है। ओके, तो दिस इज़ द अरेंजमेंट। नाउ आई कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, पी एंड आर। अगर ये टोटल 48 है, ये हमारा है कितना बन गया टोटल 10 + 5, ये 15 था, ये 5 गिवन है और ये 10, तो पी और आर के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? पी एंड आर 48 - 10, इतने में से इतना हिस्सा माइनस कर दिया, सो पी एंड आर विल बी 38। सो 38 सेंटीमॉर्गन आप इसको लिख सकते हो, वेयर एज पी एंड एस, ठीक है। अब ये 15 है टोटल, तो 48 में से 15 माइनस कर दो, सो पी एंड एस विल बिकम कितना बना 33, हाँ 33 सेंटीमॉर्गन। And what is the arrangement? It is P, S, R and Q, ठीक है। So this is all about linkage and how to calculate the distance between the genes। हमें डिस्टेंस भी पता चल गया, उनकी लोकेशन भी पता चल गई कि किस अरेंजमेंट में है। एंड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, एग्जैक्ट लोकेशन, इसी को हम बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं जेनेटिक मैप, और उसकी लोकेशंस को फाइंड आउट करना वी कॉल देम एज फिजिकल मैपिंग। ओके, चलो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, यू विल सॉल्व इट।